اور سورۃ رحمان کا جو اخیر ہے نا، آخری آیت وہ پڑھیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کا پہلا لفظ اسم اعظم، اس کا آخری لفظ اسم اعظم، اس کی پہلی آیت اسم اعظم۔ الرحمن پوری آیت ہے، اسم اعظم اس کی آخری آیت اسم اعظم۔ صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی کھاتا ہے جو مانتا ہے رب کو، صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی کھاتا ہے جو نہیں مانتا، صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اس کے عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا، اور صفت رحمان کی وجہ سے وہ بھی اس عذاب سے ٹلا ہوا ہے جو نہیں مانتا اور جو مانتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو ترتیب بنے گی، وہ ہے صفت رحیم کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوست علیحدہ ہو جائیں۔ دنیا میں مجرموں کو علیحدہ نہیں کیا، یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب کو بٹھایا، اور سب کی شکلیں مسخ نہیں کی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چور آیا، پوچھا کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ کہا اتنے لوگوں کے۔ کہا لوگوں کے چہروں کا کیا حال ہے؟ کہا میں نے اکثر کے چہروں کو بدلا ہوا پایا، کوئی خنزیر، کوئی سور، کوئی بندر، کوئی کتا۔ اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے، اللہ نے صفت رحمان کی وجہ سے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ ساری عمر کپڑا اوڑھ کے نماز جمعہ میں آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے کہ میں نے صفت رحمان کی وجہ سے اللہ کے پردے میں رہا ہوں، جبکہ میری شکل بدل گئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ جو بندہ نماز میں پہل کرے گا، نماز میں پہل کرے گا، اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے گی۔ میں نے کہا پہل کر کے تو دیکھوں، کیونکہ میں راز اور معرفت اور رب کے جانتا تھا، اس لیے میری دنیا میں ویسی شکل ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں دنیا میں ایسی شکل بنا دوں گا۔ یہ میری صفت رحمان ہے کہ دنیا میں پردے دوں گا، شکلوں میں بھی، اس کے دلوں کی سیاہیوں میں بھی، اس کی ذلت اور رسوائیوں میں بھی، اس کی رات کی تنہائیوں میں بھی، اس کی پوشیدہ زندگی کی ذلتوں اور علتوں اور غلاظتوں اور خباثتوں میں بھی یہ صفت رحمان ہے۔ اور رحمان اس سے شروع ہوئی ہے، اس لیے جو بندہ نماز عصر کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھتا ہے، میرے پاس نتائج اس کے بہت زیادہ ہیں، اور دو نتیجے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ملے ہیں۔ جو سانس روک کے 11 بار صرف یا رحمان پڑھے گا، اللہ بیٹے دیں گے، بے اولادی ختم ہو جاتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، اللہ بیٹے دیتے ہیں۔ اور دوسرا جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے، جادو کا توڑ، جادو کا توڑ بہت ہے اس میں، جادو کا توڑ بہت ہے۔ انہوں نے میرا حل سوچا، جادو کا توڑ اس میں زبردست ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ یا رحمان میں۔ اور جب بندہ سورۃ الرحمان پڑھتا ہے، اور سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، رحمان اور جو قرآن، رحمان اور قرآن، قرآن رحمان کا ہے، رحمان قرآن کے لیے ہے اور قرآن میں ہے، تو اللہ کی جو بھی نعمتیں، عطائیں، شفقتیں، رحمتیں، وسعتیں، برکتیں، خیریں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اس کے فرمان میں ہیں، اس کی رحمت کی جھلک میں ہیں، اور اس کے کائنات کے مختلف پرتوں اور مختلف نعمتوں میں ہیں۔ یہ وہ نعمتیں جو اس کے علم میں، جو لوح محفوظ میں ہیں، وہ نعمتیں اور ساری کی ساری جمع ہو کے اسی وقت جمع ہو کے آ جاتی ہیں جب بندہ صرف پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، اور وہ بن جاتی ہیں خلق الانسان
हमने इंसान को बनाया, अल्लाह कहता है ये नेमतें सारी मैं तुझे अता करता हूं। इसलिए इस सूरत को पढ़ने वाला बे औलाद नहीं रहता। गैर शादीशुदा हो, मैंने मक्का मुकरमा में एक दुर्वेश से सुना, मैंने कितनी बार लोगों को सूरत रहमान में दो चीजों में बताया है, एक बे औलादी में, एक रिश्ते न होते हैं उसके लिए सुबह शाम एक बार पढ़ने, सुबह दोपहर शाम एक बार पढ़ने, वरना रोजाना एक बार पढ़ने सूरत रहमान। आजकल सूरत रहमान सुनने एक थेरापी, एक तरीका, एक जरिया इलाज है कि इसको सिर्फ सुने, इसको सुने और वाकईतन हकीकत है, इसको सुनना शिफा, इसको देखना शिफा। कुरान को सुनना शिफा, कुरान को देखना शिफा, कुरान को बोलना शिफा, कुरान को सोचना शिफा, कुरान के लहजे में पढ़ना, कुरान को हकीकत में पढ़ना, कुरान को अटक के पढ़ना, कुरान को तकलीफ से पढ़ना और सुख से पढ़ना और जिस अंदाज में पढ़ना, यह शिफा है। और सूरत रहमान इसलिए शिफा है, क़यामत के दिन सारे के सारे पढ़ेंगे और दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ेंगे, फिर मेरा अल्लाह कहेगा आओ मैं अपना कुरान तो मैं खुद सुनाता हूं, उसका इंतखाब मेरा रब सूरत रहमान का करेगा। अल्लाह मेरे ने पूरे कुरान को, मेरे रब ने पूरे कुरान को भेजा है, लेकिन अपने लिए जो पढ़ने का इंतखाब किया है मेरे अल्लाह ने, वो सूरत रहमान का इंतखाब किया है। और सूरत रहमान में 24 नेमतों का तज़किरा है। आपने अचानक पर्चियां दी सूरत रहमान पे, तो अल्लाह ने दिल में डाला 24 नेमतों का तज़किरा है और कुदरत का निजाम, वो 24 नेमतें सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कई समंदरों की तहों में, कई पहाड़ों की तहों में, कोई नेमतें, कोई चीजें, कोई फल, आप सारी की सारी चीजें देखेंगे, वो सारी चीजें सूरत रहमान की मौजूद हैं। किसमें? किसमें? सूरत रहमान सारी की सारी नेमतें मौजूद हैं, सूरत रहमान की सारी नेमतें मौजूद हैं और पाकिस्तान में। और ये सारी नेमतें दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है, ये सारी नेमत दरअसल अल्लाह ने इजहार नेमत किया है, इजहार नेमत किया है। देखो मेरे बंदो, थोड़ी सी नेमतें मैंने गिनवाई हैं, दिखानी इसलिए है कि तुम देख के मानते हो, इसलिए कि सुन के मानते हो, इसलिए हकीकतों को मानते हो, इसलिए सूरत रहमान में नेमतें मैंने दिखा दी हैं, ये चंद दिखाई हैं। मेरे पास नेमतों के खजाने हैं, रिज़्क़ के खजाने हैं, बरकत के खजाने, मेवों के, पत्थरों के, हीरे जवाहरात के, लाल जबरजद और जमरत के, ये चीजों के खजाने हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझे जो है वहां अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद कमांडर ने एक अंगूठी दी। कहने लगा, मैंने कहा अंगूठी है, मुझे पता नहीं था वो क्या था। कहा कि मेरी शादी हुई, मुझे एहसास हुआ गरीब हूं, अंगूठी बेचूंगा, क्या पता कुछ बिक जाए। मैं लेकर गया एक जौहरी के पास, उसने देखा बहुत कीमती पत्थर है, आपको कहां से मिला है? कहने लगा बस मेरे किसी दोस्त ने मुझे दिया था। गालिबन मुझे 19 या 22 लाख बताए उस अंगूठी के पत्थर के। कराची में मुझे कुवैत का सफीर कहने लगे जी वो उसको अमलियात और रूहानियत का बहुत शौक है। एक बड़ा आदमी कहने लगा वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा वो अरब है? हाँ अरब है। मैं कहा मैं खुद मिलूंगा। इसलिए नहीं वो सफीर है, अरब है, अल्लाह के यहां उसकी बड़ी अजमत है। क्यों? मेरे हबीब की जुबान अरबी, मेरे अल्लाह की कलाम अरबी कुरान, जन्नत की जुबान अरबी और कब्र की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी और फरिश्तों की जुबान अरब। मैं उसके पास गया, कराची डिफेंस में वो रहता था। आते हुए उसने मुझे एक अंगूठी दी, पत्थर दिया, आपके लिए अंगूठी, आप पहनिएगा। मैंने हदिया कबूल किया।
मैंने एक दो बंदों को दिखाया कि अल्लाह को बहुत बहुत कीमती पत्थर है, अल्लाह के यहां ये पत्थर है, मेरे रब के पास है पत्थरों के खजाने हैं। वलिल्लाहि खजाइन समावाति वल अर्द, जिसने खजाने नेमतों के लेने हैं, जिस सूरत में सबसे ज्यादा खजानों का तज़किरा है वो सूरत रहमान है। और मालूम हुआ कि अल्लाह इस खजानों के तस्करों के साथ बंदों को यह खजाने देना चाहता है, बंदों को यह खजाने मेरा रब देना चाहता है। और जो सूरत रहमान को पढ़ेगा उसको अल्लाह खजाने अता फरमाएगा और उसको अल्लाह खजाने देगा। सूरत रहमान लोग बीमारियों के लिए सुनते हैं, सूरत रहमान पढ़ के फूंकते हैं, फिर इसका पानी टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, उसके अंदर हैरत अंगेज सेहतमंद अज्जा और तवानाइयां होती हैं। एक बंदे ने हमारे इस तस्बीह खाने के दम वाले पानी को टेस्ट पे ले गया, कहने लगा मेरी पूरी लेबोरेटरी हैरान है, ये दम वाला पानी कोई मुनफरिद कायनात का पानी है, जो दुनिया के सबसे आला तरीन पानी है, अज्जा पाए जाते हैं, अज्जा पाए जाते हैं। ये पानी उससे भी कहीं आखिरी दर्जे का है कि इसमें ऐसे सेहतमंद अज्जा हैं।
इतने खोले वो कहते थे मौला बस बस बस, मुझसे नहीं संभाले जाते, ये नेमतें, ये खजाने, ये कायनात के राज, ये सारी नेमतों के जो सूरत रहमान में मौजूद है, उनके खजानों के मुंह खोल, उनके खजानों के मुंह खोल। क्या बताऊं आपको कि सूरत रहमान क्या है, और मैं पहुंच ना सका जो ये है, कोई पहुंच ना सका जो ये है सूरत रहमान। अगली बात बताओ, जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सुना है कि उनकी 40 साल ऐसे गुजरे हैं कि सारी रात इबादत, दिन का रोजा किताबों में पढ़ा है, उनको जो अमल तकवीयत देता है वो यही सूरत रहमान का अमल है, वो यही सूरत रहमान का अमल है। वो तकवीयत देता है और उन्हें कुव्वतें देता है। सारी रात बंदा इबादत करे और दिन को रोजा रखे, तीसरे दिन पता चल जाता है, तीसरे दिन, सिर्फ तीसरे दिन एक कोई रूहानी ताकत हो, कोई रूहानी कुव्वत हो, कोई रूहानी अंदर एनर्जी हो, वो ये सूरत रहमान का अमल है, वो ये सूरत रहमान का अमल है। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या कय्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम बिरहमतिका नस्तगीस। क्यों जी, दोनों मैंने एक ही दफा पढ़ी हैं? ये दोनों मैंने ठीक पढ़ी हैं, पहली दफा भी एक ही पढ़ी है, दूसरी दफा एक ही पढ़ी है ना। मुझे एक दरवेश थे किला गोजर सिंह में, अब उनके बेटे हैं, उनका नाम अजमल साहब था रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे मैं जब आया था निहायत गरीब था, यहां एक बाबा जी थे, हजरत लाहौरी उन्हें कहते थे, उनके पास गया, कहा कुछ नहीं है, फरमाया ये पढ़, रब तेरे लिए खजाने खोल देगा, इसमें आजम है। और कहा मैंने इसको पढ़ा एक, और दूसरा फरमाया हजरत शाह अब्दुल मौली के मजार से फैज हासिल कर, सखी दरवेश हैं, आने वाले को खाली नहीं भेजते। कहा कि मैंने शाह अब्दुल मौली के मजार से फैज हासिल किया, हम बाद अज विसाल मजारात के फैज के कायल हैं, उनको दुआओं के लिए अर्ज किया जाए ये कह सकते हैं, दुआओं के लिए कह सकते हैं। हर चीज वो होती है जिसके साथ शिर्क मिलता है, हर चीज। अगर इंसान शिर्क में मुब्तला ना हो तो बाद अज विसाल मजारात से फैज मिलता है, ये हमारे बड़ों का अकीदा है। और उनको हम दुआओं के लिए कह दें, शिर्क नहीं है, ये हमारे बड़ों का अकीदा है, हमारे अकाबिर का अकीदा है। इसकी आखिरी आयत और इसकी पहली आयत बहुत अजब चीज है। तो खजाने हैं, और जो मैंने अमल बताया ना आयत करीमा वाला, हर फबियाला पे 40 बार, हाँ आयत करीमा 40 बार, ये तो अजब चीज है। कोई अगर जिंदगी में इसको अपनी अजमतों के साथ कर ले और पूरी तवज्जो से, ये ना हो कि बस वक्त ज़ाय करे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत, ना। जैसे वज़ुहा का अमल किया था, कितने मिनट लगे आपके? 12-13 मिनट। पंद्रह मिनट, 11 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 17 मिनट,
मुझे 15 मिनट 10 मिनट से ऊपर वाले अच्छे लगे, मुझे 10 मिनट के से ऊपर वाले अच्छे। ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह।